Good morning, everyone. Drop message in your class group. Join as soon as possible. Today we will see the most important topic with respect to unit test as well as university exam. So in last lecture, we have seen 3 different techniques to solve recurrence relation, right? And I have told that the master method is the method which is a little bit different than other 3 techniques, right? So today, as your today's lecture is in combined mode, so today we will see master's method, and in next week we will see different example of substitution method, right? So 3 टेक्निक तो ऑलरेडी हमने देख ली थी, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल मुझे कुछ करवाने हैं क्योंकि उसमें एग्जाम्पल पूछने की चांसेस थोड़े ज्यादा है, राइट? So that I covered in next week, and today in today's lecture we will see master's method. So as it is the important topic, I'm starting the recording, right? So you can refer it later on. और पैरेलली लिखते जाना, राइट? वापस से ये पीपीटी देखोगे तो इट माइट पॉसिबल कि यू विल नॉट गेट ऑल द थिंग्स. So now let's see master's method. So it is the 4th technique to solve the recurrence equation. So cookbook for solving recurrence of the form Tn is equal to Atn by B plus Fn, where A is greater than equal to 1, B is greater than 1 and Fn is greater than 0. See, यहाँ पे आपको टोटल 3 टर्म्स दी गए हैं, बाकी सब तो रिकरेंस में जाता है. T of n, n is the number of steps of that particular recurrence, right? और उसके अलावा आपको A, B and Fn, ये 3 different values, A and B are the constant and Fn is the function, right? ये 3 टर्म आपको देकर रखी है. अब तीनों की ही कंडीशन में लिटिल बिट डिफरेंस है. A should be greater than or equal to 1, B should be greater than 1 and Fn should be greater than 0, right? अब यहां पे आपको करना क्या है? तो you need to compare Fn with n raised to log A base B. जो भी आपको फंक्शन दिया गया है आपको उसको कंपेयर करना है n raised to log A base B. ये जो मेथड है उसमें मैथमेटिकली प्रूव करके एक पूरा डेरिवेशन है, राइट? पूरा डेरिवेशन आपको लाइक समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन एनालिसिस पार्ट ऑफ एल्गोरिथम, राइट? तो एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के लिए एक पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू ये सब कुछ फॉर्मूला क्रिएट किए गए हैं. सो वी आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन ऑल दोज 4 फॉर्मूलाज, राइट? सो आपको क्या करना है, जो भी आपको Fn दिया गया है उसको आपको n raised to log A base B के साथ कंपेयर करना है, राइट? सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड Fn. ठीक है? जहां पे भी समझ में ना आए इमीडिएटली आस्क द क्वेश्चन, राइट? क्योंकि ये पूरा का पूरी मेथड एक फ्लो में जा रही है. सो Fn is asymptotically smaller or larger than n raised to log A base B by a polynomial factor n raised to epsilon. See, हम आपको क्या बोला गया है कि Fn को आपको n raised to log A base B के साथ कंपेयर करना है, ठीक है? सो आप जब भी कंपैरिजन करते हो, जैसे आप वेरिएबल A और B को कंपेयर करते हो, तो बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, A लेस देन B, A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B, राइट? अब मान लो कि यहाँ पे स्मॉलर एंड लार्जर है, जैसे कि मैंने अभी जो बोला उस हिसाब से अगर Fn इज लेस देन n raised to log A base B है या फिर
fn is greater than n raised to log a base b है. It means fn equal to n raised to log a base b नहीं है, right? So a is not equal to b. उसके लिए क्या होगा? It is asymptotically smaller or larger than n raised to log a base b by a polynomial factor n raised to epsilon. अगर वो equal to नहीं है तो we can consider it as a like वो smaller होगा या larger होगा. Definitely maybe less than भी हो सकता है, greater than भी हो सकता है, but वहां पे definitely polynomial factor जो है वो n raised to epsilon होगा. It is fixed, right? उसको आपको क्रॉस चेक भी नहीं करना है, ना तो आपको कुछ एज्यूम करना है, राइट? एज पर द मास्टर्स थ्योरम इट इज ऑलरेडी प्रूवन ट्रू कि भाई जब भी उसकी वैल्यू स्मॉलर या लार्जर होती है, एट दैट टाइम द पॉलिनोमियल फैक्टर विल बी n raised to epsilon. अब बात करते हैं जब इक्वल होती है तब. सो fn इज asymptotically equal with n raised to log a base b. सी यहाँ पे वर्ड आप देखो, asymptotically smaller और larger, asymptotically equal. See, normal equal का मतलब क्या होता है कि 2 equal to 2, that is to be considered as 2. अब यहाँ पे asymptotically equal का मतलब क्या है कि उसकी जो complexity है, बिग ओ, थीटा, ओमेगा, जो भी नोटेशन है, it should be equal, right? So यहाँ पे क्या होगा कि n square, 2n square, 3n square, near about all the values are considered to be asymptotically equal. It is not equal, mathematically वो equal नहीं है, but asymptotically we can say that all these values are equal. समझ में है? क्योंकि सबकी complexity है order of n square. तो similarly अगर fn is asymptotically equal with n raised to log a base b, तो आपका दूसरा केस होगा, right? Which is different than the previous case. Previous case में जो भी polynomial factor है, it will be n raised to epsilon. वहां पे आपकी जो वैल्यू है asymptotically smaller या larger होगी, या तो फिर सेकेंड ऑप्शन में इक्वल होगी. इस स्लाइड में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है? एनीवन? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. Good. So now we will see exact algorithm or exact method, master's method, right? So as per the master theorem, जो outcome आया है, that is described in this PPT. So आपका जो recurrence equation होगा, उसको आपको इस फॉर्म में लाना है. Tn is equal to Atn by b plus Fn. ये जो है, it is to be considered as a standard form if you are going to analyze your algorithm or your recurrence relation using master's method. अगर आपको master method से आपका जो भी recurrence relation है उसको solve करना है, तो आपका जो भी recurrence equation है, it should be in the form of Tn is equal to Atn by b plus Fn. ठीक है? आप जो भी ओरिजिनल फॉर्मेट है उसको आपको इस फॉर्मेट में जस्ट कन्वर्ट करना है. अगेन द कंडीशन विल बी a greater than equal to 1, b greater than 1, Fn greater than 0. ये हमेशा ये ध्यान में रखना. ठीक है? अब यहां पे आपके पास 3 डिफरेंट केसेस है. सी प्रीवियस में डेफिनेशन जो थी उसमें इट इज क्लियरली मेंशन कि भाई asymptotically smaller, larger, asymptotically equal. Mathematically equal या mathematically smaller, larger हमें नहीं देखना है, right? तो यहाँ पे आपको जो asymptotic notation है, big O, theta and omega, ये 3 notation के लिए 3 different cases consider करने हैं, right? So तीनों 3 asymptotic notation आपके cover हो जाएंगे, okay? So let's see कैसे consider करने हैं. So your first case will be if Fn is equal to big O notation में n raised to log a base b minus epsilon for some epsilon greater than 0, then t of n is equal to theta of n raised to log a base b. अब हमें previous PPT में क्या बोला गया है? You need to compare Fn with n raised to log a base b. अब ये दोनों को कंपैरिजन करने के बाद आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये 3 ऑप्शन बचते हैं. ठीक है?
सो अगर वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग ओ के हिसाब से n रेज टू log a बेस b माइनस एप्सिलॉन की जो भी वैल्यू है इट इज इक्वल टू fn, देन फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we can consider complexity of the given recurrence equation is theta of n raised to log a base b. See, ये अभी हम मेथड का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, एल्गोरिथम देख रहे हैं. एग्जांपल में ये तीनों तीन केस जैसे ही कवर हो गए, यू विल बी लिटिल मोर क्लियर. बट हाँ, डेफिनेशन अभी क्लियर होनी चाहिए, राइट? सो इट विल हेल्प इन एग्जांपल पार्ट. In second case, if fn is equal to theta of n raised to log a base b, then your complexity will be Tn is equal to theta of n raised to log a base b ln lg n. ठीक है, log n. So that will be your complexity. अगर थीटा नोटेशन के हिसाब से fn की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू थीटा ऑफ n raised to log a base b. अगर ओमेगा नोटेशन है तो केस 3 कंसीडर करना है. इफ fn is equal to omega of n raised to log a base b plus epsilon for some epsilon greater than 0, and if af n by b less than equal to c fn for some c less than 1 and all sufficiently large n, then tn is equal to theta of fn. ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई. सो ये आपको कंडीशन चेक करनी है. जो येलो कलर से मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये तीन में से कोई एक केस एप्लीकेबल होगा और एक ही एप्लीकेबल होगा. एक से ज्यादा कभी एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट? सो अगर केस 1 एप्लीकेबल है तो योर कॉम्प्लेक्सिटी नीड टू बी कंसीडर इन दिस वे. अगर केस 2 है तो केस 2 के लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसे होगी और केस 3 है तो उसके लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसे होगी, राइट? सो जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है दैट विल बी योर आउटकम, और जो येलो कलर से हाईलाइट किया है वो कंडीशन आपको चेक करनी है, राइट? तो बेसिकली आपका जो फोकस रहेगा वो कंडीशन चेकिंग के ऊपर ही रहेगा. अगर आपने एक बार फाइनलाइज कर दिया कि whether the given recurrence is within case 1, 2 और 3, तो फिर आपका काम काफी हद तक इजी हो गया, राइट? तो योर मेन फोकस शुड बी ऑन द कैटेगरी ऑफ द गिवन रिकरेंस इक्वेशन. अगर आप करेक्ट कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर लेते हो सो डेफिनेटली आपके पास एक ही आंसर है, क्योंकि केस 1 में भी यूनिक आंसर है, 2 में भी यूनिक है, 3 में भी यूनिक है, राइट? तो वहां पे कोई सब केसेस नहीं है इन एनी ऑफ द केसेस, राइट? सो इट विल बी लिटिल बिट क्लियर अगर आप केस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो. ठीक है? एनी कंफ्यूजन विद इन मास्टर्स मेथड? ये एल्गोरिथम में कहीं पे भी. अब एग्जाम्पल में आपका मेन फोकस रहेगा कंपैरिजन. ठीक है? सो ये कंपैरिजन कैसे करना है, ये एक पॉइंट को छोड़ के बाकी अगर कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क, राइट? तो अगर मान लो जब भी आपको मास्टर्स मेथड का एग्जाम्पल अगर पूछते हैं तो इट इज बेटर कि आप पहले ये जो पूरा है वो एक बार लिख लो. ठीक है? सो जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प you to analyze your recurrence equation in pretty good manner. ठीक है? आंसर में ये चीज लिखना कंपलसरी नहीं है, बट हाँ इट इज प्रेफरेबल कि आप लिख लो, क्योंकि अगर आपने ये पूरे केसेस एक साथ लिख लिए हैं तो यू कैन एनालाइज योर रिकरेंस इक्वेशन इन इफेक्टिव मैनर. Now everyone clear within this slide? Sorry. आवाज क्लियर नहीं आई.
हेलो, क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल। अब एग्जांपल में स्ट्रिक्टली आपको डेफिनेशन के साथ ही कंपेयर करना है, ठीक है? सो यहां पे आपको एग्जांपल में दिया गया है, ये आपका इक्वेशन है, रिकरेंस इक्वेशन। सिंपली यू नीड टू कंपेयर दैट इक्वेशन विथ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपको क्या दिया गया है? Tn इज इक्वल टू ATN/B प्लस Fn। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ A, B एंड Fn, ठीक है? अब यहां पे ये आपका A रहेगा, ठीक है? ये आपका B है। सो बोथ द वैल्यू आर इक्वल, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 2, ठीक है? और Fn जो है वो आपका है n। तो बेस्ड ऑन योर रिकरेंस इक्वेशन आपको A, B और Fn तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आपको बोला गया है? कंपेयर Fn विथ log A बेस B। अब यहां पे उसके लिए आपको log A बेस B की वैल्यू चाहिए, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई log A बेस B, ठीक है? सो log A बेस B की वैल्यू है 1। थोड़ा log का जो इक्वेशन है वो एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेना, जो मैथमेटिक्स में आपको आता था, राइट? सो इट विल हेल्प यू। लॉग के जो भी थोड़े छोटे मोटे रूल्स है वो एक बार रिफर कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे वो चाहिए जब भी रिकरेंस इक्वेशन आप सॉल्व करने जाओगे तब। सो log A बेस B 2 इज इक्वल टू 1। अब आपको कंपेयर करना है Fn को n रेज़ टू log A बेस B के साथ। सो मेरे पास log A बेस B की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है? सो आई नीड टू कंपेयर n रेज़ टू log A बेस B विथ Fn। अब दोनों की ही वैल्यू मुझे मिल रही है n, ठीक है? सो यहां पे आपका जो रिलेशन बनेगा दैट इज Fn इज इक्वल, मतलब इक्वल टू वाला रिलेशन बनेगा। अब उसके लिए ये रहा, log A बेस B की वैल्यू क्या है? 1। सो Fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n, मतलब आपका केस 2 यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? केस 1 और केस 3 में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बट वहां पे आपको इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि प्लस माइनस एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएशन आ ही नहीं रहा है, राइट? तो केस 1 इज नॉट एप्लीकेबल, केस 3 इज नॉट एप्लीकेबल, बट केस 2 इज एप्लीकेबल, राइट? So Tn is equal to theta of n log n is your answer according to case 2। देखो जैसे यहाँ पे करेक्ट केस मेरा आइडेंटिफाई हो गया, तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। Tn is equal to theta of, यहाँ पे बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। So log A base B is equal to 1, so theta of n raised to 1 into log n। तो बेसिकली n log n will be your answer। समझ में आया? अगर आप ये एक एंड ये 2 स्लाइड परफेक्टली समझ चुके हो तो एग्जाम्पल बस 4 या 5 लाइन का ही होगा मैक्सिमम। यू विल नॉट रिक्वायर्ड मोर देन 5-6 लाइन इन टू सॉल्व योर एग्जाम्पल, बट हाँ, कंडीशन इज यू नीड टू आइडेंटिफाई करेक्ट केस, ठीक है? एवरीवन क्लियर नाउ कैसे करना है प्रोसेस? Yes, sir. So now let's see another example. Tn is equal to 2Tn by 2 plus n square. Again, you need to compare this equation with standard equation. So A की वैल्यू यहां से मिलेगी which is equal to 2, B की वैल्यू 2, Fn की वैल्यू n square, right? Log A base B की वैल्यू क्या है? 1. Now you need to compare Fn with n log A base B। So Fn को n के साथ कंपेयर करो। अब यहां पे यू कैन ऑब्जर्व कि Fn की जो वैल्यू है इट इज n स्क्वायर, राइट?
you can write it like this, n square is equal to n raised to 1 plus 1. राइट, इसको पावर में कंसिडर कर लो अभी. राइट, अब यहां पे n रेज़ टू 1 प्लस समथिंग है. राइट, तो इट इज टू बी कंसिडर एज n रेज़ टू 1 प्लस एप्सिलॉन. राइट, सो इट इज टू बी कंसिडर इन केस 3. ठीक है, अब केस 3 में क्या है? हाँ, जब भी केस 3 है तब आपको ये रेगुलरिटी कंडीशन चेक करनी है. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है. अगर केस 3 आंसर में आता है तो केस 1 और केस 2 में कोई रेगुलरिटी कंडीशन नहीं है. ठीक है, तो यहां पे केस 3 है डेफिनेटली, बट वी नीड टू चेक रेगुलरिटी कंडीशन ऑल्सो. ठीक है, अब रेगुलरिटी कंडीशन क्या बोली गई है? एंड इफ ए एफ एन बाई बी इज लेस देन इक्वल टू सी एफ एन फॉर सम सी लेस देन 1, राइट, ये रही आपकी रेगुलरिटी कंडीशन. ए एफ एन बाई बी लेस देन सी एफ एन. ठीक है, ए की वैल्यू पुटअप करो टू एफ एन बाई बी. एफ एन की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर. सो यू नीड टू रिप्लेस एन विथ एन बाई बी. बी की वैल्यू है 2, सो आपको आंसर मिलेगा एन स्क्वायर बाय 4 लेस देन सी. एफ एन की वैल्यू है एन स्क्वायर. ठीक है, अब इसके ऊपर से मुझे सी की वैल्यू क्या मिली? 1/2 इज अ सॉल्यूशन. ठीक है, अगेन उसको आप रेगुलरिटी कंडीशन के साथ चेक करो. सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए. एंड ऑल सफिशिएंटली लार्ज एन. सी की वैल्यू कंपलसरी 1 से लेस देन मिलनी चाहिए. हमें क्या मिल रही है? सी की वैल्यू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 विच इज लेस देन 1. ठीक है, तो हमारी जो सी लेस देन 1 की कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, रेगुलरिटी कंडीशन कैसे चेक करनी है समझ में आया? Everyone? Yes, yes. Good. So अगर रेगुलरिटी कंडीशन आपकी ट्रू होती है then only you can write outcome. अगर नहीं आती है तो आपको जस्ट मेंशन करना है here regularity condition is not followed. That's it. अगर रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू है तभी आपका जो आंसर है वो Tn is equal to theta of Fn मिलेगा. So simply you need to write complexity Tn is equal to theta of n, जो यहाँ पे लिख दिए. Theta of Fn, sorry, theta of Fn. Fn है n square. So your complexity is equal to theta of n square. Right? So ये जो कुछ अलग केस था केस 3, केस 1 एंड केस 2 में सिमिलर है. जो यहाँ पे प्रोसेस हमने की थी प्रीवियस एग्जांपल में, सेम केस 1 के लिए भी रहेगा. ठीक है, केस 3 में थोड़ा अलग है. यू नीड टू वेरीफाई रेगुलरिटी कंडीशन ऑल्सो. राइट, थर्ड एग्जांपल देखते हैं केस 1 के लिए भी एक, बट एक्चुअली इट इज सेम एज केस 2. ठीक है, तो चलो केस 1 के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. Tn is equal to 2Tn/2 plus square root n. यहाँ पे a equal to 2, b equal to 2, log a base b के वैल्यू भी 1 मिल रही है. सो नाउ कंपेयर n विद fn is equal to n raised to 1/2. सी ऑलवेज आपका जो भी fn है वो n raised to के पावर में हमें चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको उसको कंपेयर करना है n raised to 1 प्लस और माइनस एप्सिलॉन के साथ. ठीक है, तो उसके लिए आपको n रेज़ टू के पावर में ही चाहिए. तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे कई बार देते हैं, तो आपको उसको रीराइट करना पड़ेगा मैथमेटिकली जो करेक्ट हो वो. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल टू n रेज़ टू 1/2. ठीक है, तो n रेज़ टू 1/2 इज लेस देन n रेज़ टू 1. राइट, सो यहाँ पे आपको मिलेगा n रेज़ टू 1 माइनस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की वैल्यू हमें कुछ मिलेगी, जैसे इस केस में है 1/2. 1/2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 हमें मिल रहा है. राइट,
So Fn is equal to big O notation of n raised to 1 minus epsilon which falls in case 1. So case 1 में आपका आंसर है Tn is equal to theta of Fn. Sorry, केस 1 में आपका आंसर है थीटा ऑफ n रेज़ टू log a base b. log a base b की वैल्यू है 1. So your answer is theta of n. Right? So theta of n will be your answer. Okay? So case 1, case 2, case 3 तीनों के लिए एक एक एग्जांपल आपको मिल गया. Right? So I think now you are able to solve any equation using Master's method. Am I right? कोई भी केस में कहीं पे भी डेफिनेशन में कुछ कंफ्यूजन? एनीवन? एग्जाम्पल इसके बहुत सिंपल है, राइट? ये जस्ट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर मेथड एक्यूरेटली. जो फर्स्ट सेकंड स्लाइड थी वो करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस. सॉरी, ये मेथड पे ज्यादा फोकस करें ना हम लोग, प्रैक्टिस मतलब पेपर में प्रैक्टिस में. हाँ देखो, आपको एग्जाम्पल अगर आया रिकरेंस का तो आइदर मास्टर का होगा या सब्स्टिट्यूशन का होगा. ठीक है, ये दो में से कोई एक ही आने वाला है, दैट इज श्योर. और यहाँ पे जनरली लाइक मेथड के साथ एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट? क्योंकि एग्जाम्पल अगर सिर्फ पूछे गए तो हार्डली इट विल टेक 5 to 7 स्टेप्स. ठीक है, अगर रेगुलरिटी कंडीशन भी आती है तो 6-7 स्टेप में तो आपका आंसर मिल जाता है, राइट? अगर ऐसा ही हुआ तो फिर इट विल बी आस्क्ड इन मे बी 3 मार्क, मैक्सिमम 4 मार्क. 4 मार्क में भी शायद ये आए. हाँ, अगर फुल फ्लैग पूछा जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड इन 5 to 7 marks, theory as well as example. So few more example is given here. Tn is equal to 3Tn by 4. See, हमने जो भी 3 एग्जाम्पल अभी देखे वहां पे log a बेस b की वैल्यू हमेशा 1 मिल रही थी. तो यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू अगर मिल रही है तो what you need to do? So Tn is equal to 3Tn by 4 plus n log n. So a की वैल्यू 3 मिली, b की वैल्यू 4, log a बेस b, सॉरी log a बेस b की वैल्यू हमें मिल रही है 0.793. ठीक है, नाउ आप लोग बोलोगे सर log a बेस b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने की है? कैसे करते हो आप लॉगरिथम मैथमेटिक्स में? याद करो. भूल गए हो ना? डोंट वरी, कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर.
उसमें यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, आपको ये आंसर सीधा मिल जाएगा 0.793। ठीक है, सो साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ में रखना, सो इट विल बी इजी, राइट? ओके, नाउ बैक टू द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे log a बेस b की वैल्यू मुझे मिल रही है 0.793। अब मुझे क्या करना है? अगेन कंपैरिजन करने से क्या मिल रहा है? log a बेस b प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि वहां पे log n मिल रहा है। सो केस 3 यहां पे हमें मिलेगा क्योंकि प्लस एप्सिलॉन है, दैट्स व्हाई। सो चेक रेगुलरिटी कंडीशन। सी बेसिकली आपको क्या करना है, केस 1 2 3 के लिए पहले इक्वल चेक कर लो, अगर इक्वल नहीं है तो लेस देन या ग्रेटर देन होगा। सो वैल्यू मतलब उससे कम मिल रही है कि ज्यादा मिल रही है? ज्यादा मिल रही है तो केस 3 कम मिल रही है तो केस 1 इक्वल है तो केस 2, राइट? इन दिस वे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एक्यूरेट केस। अगर आपने केस गलत फाइंड आउट कर लिया तो आपका आंसर हम 110% रॉन्ग ही आने वाला है, क्योंकि तीनों का आंसर पूरा अलग ही है, राइट? सो केस 3 में यू नीड टू चेक रेगुलरिटी कंडीशन ऑल्सो। सो रेगुलरिटी कंडीशन चेक करो, सी एफ एन की वैल्यू, बेसिकली हमें सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पे भी हमें सी लेस देन 1 मिल रहा है, 3/4 इज इक्वल टू 0.75, राइट? सो नाउ we can write complexity of given recurrence equation Tn is equal to theta of n log n। केस 3 में वो सबसे सिंपल है कि आपका जो भी fn की वैल्यू है वही थीटा नोटेशन में आपको रखना है, थीटा ऑफ fn इज योर आंसर, राइट? बाकी सब में क्या है कि थीटा के अंदर भी छोटा सा कैलकुलेशन है एक स्टेप का, राइट? यहाँ पे तो सीधा आंसर ही मिल जाता है अगर रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू होती है तो, राइट? So your answer is Tn is equal to theta of n log n. So it is not the case कि हमेशा आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा, log a बेस b की वैल्यू 1 ही मिलेगी, राइट? ऐसे कुछ अलग भी मिल सकती है कई बार। आपको सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ में रखना है जब आप एग्जाम देने बैठो तब, राइट? सो यू कैन राइट द करेक्ट आंसर, राइट? आपको ये सीधा मिल जाएगा 0.793। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, Tn is equal to 2Tn by 2 plus n log n, a equal to 2, b equal to 2, log a base b is equal to 1। यहाँ पे अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं fn के साथ तो आपको ऐसा कुछ लगेगा कि केस 3 should be applied, but fn must be polynomially larger by a factor of n raised to epsilon. So in this case it is only larger by a factor of log n। ठीक है, so it cannot be solved using Master's method, क्योंकि यहाँ पे केस 1 2 3 में से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट? उसकी कंडीशन है जब भी एप्सिलॉन का आप यूज करो तो मिनिमम उतना गैप होना चाहिए, और यहाँ पे उतना गैप हमें नहीं मिल रहा है, राइट? यू कैन अगेन रिफर टू द डेफिनेशन, ये रहा, एफएन इज एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर और लार्जर। ठीक है, केस 1 और 3 के लिए स्मॉलर लार्जर वाला ऑप्शन रहेगा, तो वहां पे आपका पॉलिनोमियल फैक्टर कंपलसरी n रेज टू एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके एप्सिलॉन की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे केस 3 में हमें एप्सिलॉन की वैल्यू क्या मिली थी, ये रहा 1 मिली है एप्सिलॉन की वैल्यू। ठीक है, तो इतना गैप होना चाहिए। यहाँ पे भी केस 1 में भी हमें एप्सिलॉन की वैल्यू मिल रही है 1/2। ठीक है, बट यहाँ पे हमें जो लार्जर फैक्टर है वो सिर्फ log n है, जो कि एप्सिलॉन से छोटा है, तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर मास्टर्स मेथड, राइट? तो ये जो इक्वेशन है इट कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग मास्टर्स मेथड। तो हर एक रिकरेंस इक्वेशन मास्टर मेथड से सॉल्व होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां पे केस 1 2 और 3 में से कोई एक केस एप्लीकेबल होगा, उसी रिकरेंस इक्वेशन को हम मास्टर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट बहुत सारे लाइक टोटल जितने भी रिकरेंस इक्वेशन है स्टैंडर्ड एल्गोरिथम में, उसमें से मेजॉरिटीली रिकरेंस इक्वेशन हम मास्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो ये जो है इस तरह के जो केसेस होंगे इट शुड बी कंसिडर इन एक्सेप्शनल केसेस, राइट? सो क्लियर एवरीवन?
that's all for today. Now during next week हम सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल देखेंगे, आपके जो भी लेक्चर्स आएंगे उस ड्यूरेशन में, राइट? नेक्स्ट वीक में आपकी एग्जाम है, राइट? यूनिट टेस्ट 1. सो ऑफिशियली तो मैं सिलेबस शेयर करूंगा, बट करंटली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ सिलेबस आपका जो भी है. फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था कब से, राइट? सेकेंड चैप्टर में यहाँ तक का आपका सिलेबस रहेगा. रिकरेंस के जो इक्वेशन है वो, सॉरी, रिकरेंस के जो भी एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट वीक में देखने वाले हैं वो भी आपको यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है? अभी चैप्टर 2 का कुछ पार्ट बाकी है, सो दैट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर यूनिट टेस्ट 1, ठीक है? अभी चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट नहीं होगा. इवन एग्जाम्पल खत्म होने के बाद भी 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स है दैट वी विल सी आफ्टर द एग्जाम्पल ऑफ रिकरेंस इक्वेशन. शायद वो यूनिट टेस्ट के पहले भी हमारा खत्म हो जाए, शायद खत्म नहीं भी हो सकता है, ठीक है? सो दैट्स वाई अभी मैं आपके साथ ऑफिशियली सिलेबस शेयर नहीं कर रहा हूँ. मे बी 1-2 दिन में कर दूंगा, डोंट वरी, राइट? सो एक बार देख के कि कितना कवर हो सकता है, राइट? हाँ, लेकिन यहाँ तक डेफिनेटली होगा सिलेबस में. अब जो भी 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको इंक्लूड करना या नहीं करना, इट विल बी डिसाइडेड विद इन 1 or 2 डे, ठीक है? सो आफ्टर दैट आई विल शेयर द सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस, ठीक है? लेकिन इतना तो आपको करना ही है. और जो बिनल मैम का पार्ट है उसमें एक चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, एम आई राइट? डिवाइड एंड कॉन्कर, राइट? और मैम ने अभी शायद डायनामिक स्टार्ट किया होगा, सही है अनुश्री? यस सर. डायनामिक स्टार्ट हो गया ना? हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी. हाँ, डायनामिक स्टार्ट हो गया कि बाकी है अभी स्टार्ट करना? Sir, in last lecture of Bina ma'am, we were doing the some examples of quick shot. She was explaining about quick shot in last lecture. ओके, तो शायद कोई एक क्लास में, मतलब CSE 1-2 में नहीं हुआ होगा, तो अभी उनका एक आध लेक्चर बाकी है. सो मैम विल कंप्लीट दैट चैप्टर, ठीक है? सो मैम के पोर्शन में से डिवाइड एंड कॉन्कर पूरा रहेगा. अगर डायनेमिक स्टार्ट भी हो जाता है तो इट विल नॉट बी आस्क्ड इन यूनिट टेस्ट 1, डोंट वरी. हेलो. हाँ बोलो. यस सर, आपकी वॉइस पहले ब्रेक हो रही थी. डायनेमिक बाकी है. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. यूनिट टेस्ट 1 में डायनेमिक में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. शायद मैम स्टार्ट भी कर दे बिफोर यूनिट टेस्ट, ठीक है? सो यस. डिवाइड एंड कॉन्कर पूरा रहेगा, दैट विल बी फाइनल. और डायनेमिक अगर चलता भी है एक आध टॉपिक तो इट विल नॉट बी आस्क्ड, क्योंकि वो शायद जस्ट यूनिट टेस्ट के पहले ही चलेगा, एक आध दिन पहले, ठीक है? तो वी विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ओके? और मेरे पोर्शन में यहाँ तक डेफिनेटली है. अब नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूड करना है नहीं करना है वो मैं देख के आपसे कन्वे कर लूंगा, ठीक है? तो एग्जैक्ट सिलेबस तो मैं भेजूंगा 1-2 दिन में, राइट? पति के लेक्चर, ठीक है? सो नाउ यू कैन लीव, ओके? Okay, thank you, sir. ओके, बाय.